एक पंछी ने एक पेड़ से उड़ के दूसरा पेड़ में जाके बैठ गया। तो उसी टाइम इसने जो पाथ को फॉलो किया, दिस डॉटेड लाइन, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और इसका जो पोजीशन चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो दिस डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड है, बट दिस डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो मैथमेटिशियन लोगों ने इसको एक नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर। तो अगेन इस पंछी ने इसी पेड़ से उड़ के फिर और एक पेड़ में जाके बैठ गया। उस टाइम इसने जो पाथ को फॉलो किया, दिस इज अगेन कॉल्ड द डिस्टेंस, एंड उसका जो पोजीशन चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। एंड इसी टाइम उसका जो रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द resultant displacement, or we can say this is called the resultant vector. Now you see this displacement converted with the vector A, and this is the converted with the vector B, and this is the resultant vector R. So we can say this resultant vector R equals to vector A plus vector B. Now let's start the vector. This is the arrow, and इस arrow का मीनिंग क्या है? इसको बोलते हैं tail, and this is the head, and इसका जो length, this is called the magnitude, and इसका जो angle है with the x axis, this is called the direction. Now you see, this is the arrow, this is another arrow, and this is the parallel vector, and this is again the parallel vector but the opposite direction. And this is a one vector, and this is again this is a similar vector. Similar vector means its magnitude and directions are same. Again this is the similar vector, all are the similar vector, and this is the non-parallel vector. Now let's see the scalars. So scalar is the quantities which have only magnitude, like mass, distance, area, volume, and vector. Vector also a quantities and which have both magnitude and direction. And this example is the force, displacement of a point, velocity of a point, acceleration of a point, electric field and the magnetic field. अभी हम लोग वेक्टर को बारीकी से देख लेते हैं. So this is the arrow and its magnitude is the 5 unit, and this is the direction, this is the theta of this x axis, and this is another vector. Again its magnitude is the 5 unit, and we can say this is the vector A, and again this is the vector A, and this is another vector but its magnitude is the same but direction is the opposite. So suppose this is called the vector B. So we can say this vector B equals to minus vector A because its direction is the opposite but the magnitude is the same. Again this is another vector, its magnitude unit is the 6, and this is another vector, this magnitude unit is the 3 but direction is the same. So this is a 6 unit and this is a 3 unit. So we can say, suppose this is a vector A and this is a vector B. So this vector A equals to 2 into vector B. This 2 is actually the scalar quantity. Now let's see the vector addition. ये जो vector addition है, this is not similar with the scalar addition. तो scalar addition को हम लोग direct add कर सकते हैं. Just like scalar quantity is the 5, 6, 7, 8. But इस vector में क्या है?
इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, तो इसका एडिशन थोड़ा डिफरेंट। सो दिस इज ए वेक्टर बी एंड दिस इज ए वेक्टर ए। सो इसको एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? सो दिस वेक्टर ए को हमने एक डिफरेंट जगह में शिफ्ट कर लिया, बट इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम रख के, एंड वेक्टर बी को भी एक दूसरा जगह में शिफ्ट कर लिया, उसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज द सेम। सो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज कॉल्ड द आर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एक साइड है ट्रायंगल का, ये एक दूसरा साइड है, और इसका जो और एक साइड है, दिस साइड को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी इस रिजल्टेंट वेक्टर को एंगल क्या है? दिस इज द एंगल ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर विद द एक्स एक्सिस। सो दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो अभी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो अभी इस डायग्राम को देख लेते हैं। सो दिस टेल ऑफ दिस वेक्टर बी कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द वेक्टर ए, ओके, और ये जो टेल ऑफ वेक्टर ए के साथ जो हेड ऑफ वेक्टर बी को जो ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, दिस लाइन इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो अभी जो वेक्टर एडिशन हमने देखा है टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्केलर एडिशन। सो दिस वेक्टर एडिशन में क्या है ना, मैग्नीट्यूड भी है और स्केलर भी है, बट ओनली द एंड डायरेक्शन भी है, और बट दिस स्केलर एडिशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं। तो अभी थ्योरम 1 अब वेक्टर को देख लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। सो दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज ए वेक्टर बी। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर पी आर। अभी देखिए और एक डायग्राम बनाया। सो दिस वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस वन, दिस वेक्टर ए, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज द सेम। इसका डायरेक्शन इसी तरह इसी डायरेक्शन में है और इसका भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका जो डायरेक्शन है, ये तो डायरेक्शन भी सेम है, और इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका जो लेंथ वो भी सेम है। और ये जो वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। मतलब इसका जो लेंथ है, इस लेंथ दोनों सेम है, और इसका जो डायरेक्शन वो भी दोनों सेम है। सो अभी इस दोनों का हम एडिशन करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो क्या होगा? ये है वेक्टर बी का टेल और ये है वेक्टर ए का हेड। तो सेम, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर पी आर। सो वी कैन से दिस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर पी आर। सो थ्योरम 2 को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। दिस एसोसिएटिव लॉ में a प्लस बी इन द ब्रैकेट प्लस सी, a प्लस इन द ब्रैकेट b प्लस सी। तो इसको प्रूव करते हैं। सो दिस इज ए पी क्यू आर एस। दिस पी क्यू का मतलब है वेक्टर ए, क्यू आर का मतलब है वेक्टर बी, एंड आर एस का मतलब है वेक्टर सी। इस वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम ऐड करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो क्या आएगा? इज ए प्लस बी आएगा। यह है वेक्टर ए का टेल और यह है वेक्टर बी का हेड। तो ये क्या है? ए प्लस बी। और अभी देखिए दिस इज सी वेक्टर। सो यह है वेक्टर ए बी का टेल और यह है वेक्टर सी का हेड। सो इसको जब ज्वाइन करेंगे, ये क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ओके, सो अगेन इस वेक्टर बी के साथ वेक्टर सी को हम ज्वाइन करेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो क्या होगा? यह है वेक्टर बी का टेल और यह है वेक्टर सी का हेड। तो ये जो हमने ज्वाइन किया है, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर बी प्लस सी।
फिर अगेन इसको जब हम ज्वाइन करेंगे वेक्टर ए के साथ, मतलब ये है आपका वेक्टर बी प्लस सी का हेड और ये है वेक्टर ए का टेल। फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। सो अभी हमने इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। एक्चुअली वेक्टर का नोटेशन क्या है, ये जो ए हमने डायरेक्ट लिख दिया, दिस इज नॉट ए, दिस इज ए बोल्ड लेटर ऑफ ए, दिस इज ए बोल्ड लेटर ऑफ ए। By this way we can notate the vector. Again we can notate the vector like this way and this way also. And magnitude of this vector वो क्या होता है, इसको बोलते हैं magnitude of the vector. So multiplication of vector by scalar. तो स्केलर क्वांटिटी से हमने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो m प्लस n, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इक्वल्स टू एम ए प्लस एन ए। अगेन दिस m इज द स्केलर क्वांटिटी एंड a एंड b इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज कम विद द एम ए प्लस एम बी। सो इसको प्रूव कर लेते हैं। दिस इज अ पी क्यू आर ट्राइंगल and this is a vector and this is a b vector and this is a resultant vector a plus b। and दूसरा एक ट्राइंगल है, this is called the PQR again and this is the MA MB and its resultant vector is the MA plus MB। अभी देख लीजिए इस दोनों ट्राइंगल को, इस दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल, क्यों, क्योंकि इसका जो तीन एंगल है, तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, तीनों एंगल सिमिलर। सो वी कैन से दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल होने से क्या होता है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स आल्सो इक्वल। सो दिस प्रोपोर्शन ऑफ दिस ऑल साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो इक्वल। सो दिस एम ए बाई ए इक्वल्स टू एम, एम बी बाई बी इक्वल्स टू एम। अगेन this a plus b, m into a plus b equals to m. So all proportionality of corresponding sides are equal. So by this way you can prove the multiplication of vector by scalar. The subtraction of vectors. तो a minus b इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a plus minus inside the bracket. Okay, so actually this minus b का मतलब क्या है, so this is a b minus b means minus 1 into b, so equals to minus b. so अभी हमने एक वेक्टर को minus 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सपोज इसे वेक्टर a, इसको मल्टीप्लाई करते हैं minus 1 से। सो माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करने से इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओनली चेंज द डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वेक्टर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने से इसका मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ओनली डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। So this is a vector b and this is a vector minus b, मतलब इसका डायरेक्शन is changed but its magnitude is the same. So we can write here by this way, b into minus 1. Okay, so this is a vector a and इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, this a minus b. Okay, so this is called the subtraction of vectors. This is nothing but a addition of vector with the minus b. Addition of vector by parallelogram law. So these are two vectors a and b, और इस दोनों वेक्टर को हमने पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करेंगे। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो b है इसका पैरेलल इस साइड में एक b ड्रॉ कर लिया और इसका भी a का पैरेलल इस साइड में भी a ड्रॉ कर लिया।
तो दिस इज अ पैरेललोग्राम और इसका जो डायगोनल है दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी. सो एक्चुअली ये जो वेक्टर एडिशन है दिस a प्लस बी, सपोज दिस इज अ वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर r. तो इसको कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल कैसे निकालेंगे इस रिजल्टेंट वेक्टर को. तो पहले ये जो पॉइंट है d, इस d पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया और ये ए बी लाइन को एक्सटेंड करने से ये ई पॉइंट में कट किया. तो अभी जो ट्राइंगल डी ई बी फॉर्म किया दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड अगेन जो ट्राइंगल डी ए ई जो फॉर्म किया दिस ट्राइंगल दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल. सो दिस ट्राइंगल डी ए ई ऑल्सो ए राइट एंगल ट्राइंगल. और ये जो थीटा है दिस थीटा एंगल और ये जो एंगल थीटा दिस दोनों एंगल सेम है क्योंकि ये दो ए सी लाइन इज पैरेलल विद दिस बी डी लाइन एंड ऑल्सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू लाइन इज सेम. सो दिस एंगल थीटा इज इक्वल विद दिस एंगल दिस डी बी ई एंगल मीन्स दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा. तो अभी इसका इक्वेशन को हम लोग निकालते हैं. तो पहले जो ट्राइंगल डी ए ई है तो इसका जो एच पर पिथागोरस इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो दिस ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर. सो दिस ए ई स्क्वायर मीन्स द ए बी प्लस बी होल स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. सो दिस ए बी एक्चुअली ए and this BE. This BE means the cos theta and this DE means the sin theta. So वो कैसे आते हैं? Now this triangle DEB is the right angle triangle. So this DE by DB equals to cos theta. So DE equals to B cos theta because this DB equals to B. And again the same principle we used, then we'll get this actually BE. BE by DB equals to cos theta and this DE by DB equals to sin theta. So this DE equals to B sin theta. So this DE means B sin theta and BE means the cos theta. सो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो इक्वल्स टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 1 है. तो 1 इंटू बी स्क्वायर मीन बी स्क्वायर. सो ये इक्वेशन फॉर्म होता है ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल्स टू क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और ये अल्फा दिस एंगल किसके साथ है? ये रिजल्टेंट वेक्टर ए डी एंड विद दिस वेक्टर ए मींस ए बी. ये जो एंगल फॉर्म किया है दिस इज अल्फा. सो दिस tan अल्फा इक्वल्स टू डी ई बाई ए ई बिकॉज दिस टोटल डी ए ई इज द राइट एंगल ट्राइंगल. सो दिस डी ई दिस ए ई का मतलब क्या है? ए बी प्लस बी ई. तो दिस डी ई का मतलब है b sin theta and AB means A and BE means B cos theta. So this alpha means tan inverse total B sin theta by A plus B cos theta. Now let's see the subtraction of vector. So this subtraction of vector means the A and B the two vectors. तो subtraction कर लेंगे तो क्या आएगा? A minus B. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज द सम ऑफ द वेक्टर
ए एंड माइनस बी, ए एंड माइनस बी। सो क्या होगा ना, बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ए वेक्टर। इसको हम ग्राफिकली कैसे प्रूव करें? सो दिस इज अ वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर माइनस बी। सो एक वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है, ये इसका डायरेक्शन का चेंज हो जाता है, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, रिवर्स हो जाता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट। सो हम किसी वेक्टर को -1 देके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्शन 180 डिग्री घूम जाता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसीलिए ये जो बी वेक्टर है, ये इसका डायरेक्शन जस्ट लाइक ऑपोजिट माइनस बी वेक्टर। तो इसको भी एक पैरेललोग्राम मेथड से हम इसका भी एडिशन निकालेंगे तो क्या आएगा? सो दिस इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम एंड दिस इज द ए माइनस बी वेक्टर, और इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं और इसको सॉल्व करने से हम लोगों को वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों ही समझ में आ जाएगा। सो दिस आर टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल, its magnitude is the 5 and its angle is the 60 डिग्री। सो इसका जो डायगोनल होगा वो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो दिस वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So equals to a square means a equals to 5 unit and b equals to 5 unit. So root of 5 square plus 5 square plus 2 into 5 cos theta. So equals to 2 into 5 square into 1 plus, ये cos थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री, ये थीटा एक्चुअली 60 डिग्री, सो cos 60 डिग्री, दिस 1 प्लस cos 60 डिग्री, एक्चुअली 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 2 इंटू 5 इंटू cos 30 डिग्री। सो cos 30 डिग्री का मान, इसका वैल्यू क्या है, इसे हाफ। तो क्या आएगा, ये हाफ नहीं है, इसका वैल्यू है एक्चुअली रूट 3/2। सो 2 इंटू 5 इंटू रूट 3/2 इक्वल्स टू 2 कैंसिल 5 रूट 3। सो इसका जो वैल्यू है इक्वल्स टू 5 रूट 3। सो इसका जो सब्सट्रैक्शन भी देख लेते हैं। तो दिस इज ए माइनस बी एंड बाय दिस पैरेललोग्राम दिस इज ए माइनस बी। सपोज दिस इज ए R1 रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस R1 रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा है दिस इज 120 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये जो एंगल है 60 डिग्री और ये जो एंगल है ये 120 डिग्री, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि ये बी और ये माइनस बी, तो हम लोग ये रिवर्स, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर, तो इसका जो एंगल है 120 डिग्री, तो ये है 120 डिग्री। तो इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 120 डिग्री। सो मीन्स अगेन दिस इज ए cos स्क्वायर 60 डिग्री। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5 इंटू cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 5 यूनिट। ओके,